بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ایم یور رائٹر سحر علی قریشی۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حاضر ہوئے ہیں ہم آج بکھری میری ذات ناول کی ایک نئی قسط کے ساتھ۔ تو چلیں بڑھتے ہیں ہم اپنی قسط کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بکھری میری ذات از قلم سحر علی قریشی، 51ویں قسط، آخری حصہ۔ افندی ولا میں بینش کا استقبال بڑے ہی دھوم دھام سے کیا گیا تھا۔ عنایہ بیگم کئی طریقوں سے اس کا صدقہ دے چکی تھی۔ چند رسمیں کرنے کے بعد اسے اس کے پھولوں سے سجے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ بینش نے قدم جیسے ہی کمرے میں رکھے، چندن کی اور مختلف پھولوں کی بھینی بھینی سی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تو بینش نے آنکھیں بند کر کے کھولی اور اس خوشبو کو محسوس کیا۔ پھر چھوٹے چھوٹے قدم اندر رکھتی وہ کمرے کے وسط میں آئی۔ عنایہ بیگم جا چکی تھی۔ اب وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ کمرے میں ہر طرف پھول ہی پھول بکھرے تھے۔ جہازی سائز بیڈ کے اوپر دیوار پر بینش اور ایلبرٹ کی بڑی سی تصویر لگی تھی۔ یہ تصویر ان کے نکاح کی تھی، جس میں ایلبرٹ بینش کے ہاتھ چوم رہا ہے۔ اس تصویر کو دیکھ کر ایک دل فریب مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر رقص کرنے لگی۔ کمرے میں دیواروں پر ہلکی لائٹس کی تاریں لٹک رہی تھیں جو مختلف رنگوں کی تھیں، کبھی جلتی کبھی بجھتی اور خوابناک سا ماحول پیش کر رہی تھی۔ بینش مزید قدم قدم چلتی آگے بڑھی، مگر نظر جیسے ہی بیڈ کے سائڈ میز پر پڑی تو اس کا دل ڈوب کے ابھرا، کیونکہ وہاں دو چھوٹے چھوٹے باؤل پڑے تھے، ایک مہندی کا اور دوسرا ہلدی کے پیسٹ کا۔ بینش کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ مطلب وہ اس سے بدلہ لینے کے لیے رکھے گئے تھے؟ شادی کی پہلی ہی رات اب وہ اس سے بدلہ لے گا؟ بینش نے بجھے دل سے سوچا۔ مطلب کل کی اپنی کی ہوئی کارستانی اسے یاد نہ تھی، اور اب ایلبرٹ بیچارہ اس کی نظر میں اب ظالم بن گیا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب باہر سے آذر اور ایلبرٹ کی گفتگو سنائی دینے لگی۔ تو آخرکار انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی۔ من میں محبتوں کا جہان لیے دل ہی دل میں سوچتا وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا، مگر یہ کیا، ایلبرٹ جیسے ہی کمرے کے پاس پہنچا اس کی چوکھٹ پر ہی سیاہ گوگلز لگائے آذر کھڑا دکھائی دیا، جو پورے دروازے کے آگے پھیل کے کھڑا تھا۔ مطلب وہ سیدھا سیدھا نو انٹری کا بورڈ تھا علی سرمد افندی کے لیے۔ ایلبرٹ رج کے بدمزہ ہوا، اور وہ ایکسائٹمنٹ جو تھوڑی دیر پہلے اسے تھی پل میں ہوا ہوئی۔ اور تو اور آذر نے اپنے ساتھ دو تین چھوٹی چھوٹی کزنز کو بھی کھڑا کر رکھا تھا۔ یہ دیکھ ایلبرٹ نے مزید آنکھیں گھمائیں۔ مطلب وہ جو اتنا خوش ہو رہا تھا کہ اچھا ہوا کہ ان کی کوئی بہن نہیں ہے اور کمرے میں جانے کے لیے پاپڑ نہیں بیلنے پڑیں گے، نہ ہی جیب کا کچرا کروانا پڑے گا، تو ایلبرٹ صاحب کی اس خوش فہمی کو دور کرنے کے لیے اور وہ بہن نہ ہونے کی کمی پوری کرنے کے لیے آذر صاحب وہاں سالم موجود کھڑے تھے اور سیلفیز پر سیلفیز لینے میں مصروف تھے، جسٹ لائک #کباب میں ہڈی۔ اس کی ان حرکتوں پر عرش عرش کرتے ایلبرٹ نے دانت پیسے اور اپنی ٹربن کو اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ ارے بھائی آ گئے آپ، ہم سب آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے۔ ایلبرٹ کو اپنی طرف آتے دیکھ آذر نے چہک کر کہا، چلے اب جلدی سے اپنا وائلٹ ہمارے حوالے کر دیں اور اندر جانے کا ٹکٹ آسانی سے کٹوا لیں۔ آذر نے موبائل فون جیب میں رکھتے چشمہ ٹھیک کیا اور پھر پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر شان بے نیازی سے کہا، اور اس کے جملہ پورا کرتے ہی باقی سب نے ہوٹنگ کی تھی۔ ایلبرٹ نے ایک کاٹ تار نظر آذر پر ڈالی، دوسری نظر ساتھ کھڑی اپنی کزنز پر، اور پھر تیسری اور آخری مسکین نظر اس نے دروازے کے اس پار نہ نظر آنے والی اپنی دشمن جان پر ڈالی۔ یہ لوگ اس کی گھر گرہستی میں گرہن بننے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے تھے۔ جہاں تک مجھے پتا ہے یہ نیک تو بہنوں کا ہوتا ہے، تو تو نے کیا اپنا جینڈر چینج کر لیا ہے؟ ایلبرٹ نے جبڑے بھیج کر اسے شرمندہ کرنے کی بھرپور کوشش کی، مگر بے سود۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوا تھا بلکہ ماہا ڈھیٹوں کی طرح دانت نکالتا رہا۔ وائلٹ وائلٹ، ہتھیلی آگے کرتا وہ بتی سی دکھاتے بولا، زیادہ دیر بھابھی کو انتظار نہیں کروانا چاہیے آپ کو، آذر نے مزید شرارت سے کہا، اور اس سے پہلے ایلبرٹ کچھ بولتا اندر سے آواز آئی، اس دشمن جاں کی، ہاں آذر اسے آنے مت دینا میرے بھائی، بینش نے گھبراتے ہوئے کہا، جو کسی صورت بدلے کی بھینٹ نہیں چڑھنا چاہتی تھی۔ وہ جو بینش کی خوبصورت آواز سن کر اتنا خوش ہوا تھا، مگر اس کا جملہ سنتے ہی سیخ پا ہوا اور جی جان سے جل اٹھا۔ بینش کی بات پر آذر کا کہکا بلند ہوا، لو بھائی گئی بینس پانی میں۔ آذر نے مزید مرچ مسالہ لگانا ضروری سمجھا اور جلتی میں خوب تیل کا کام کیا۔ تمہیں تو میں اندر آ کر بتاتا ہوں چڑیل،
एल्बर्ट ने गुस्से से कदरे चीख कर कहा, और चुड़ैल, ये लफ्ज़ उसने दिल में बोला था। एल्बर्ट की वो सीली आवाज़ पर बिनिश मज़ीद कन्फ्यूज़ हो गई और अब की बार उसने खामोश रहना ही मुनासिब समझा। फिर अगले ही लम्हे एल्बर्ट ने अपनी जेब से स्याह वॉयलेट निकालकर आज़र की हथेली पर रखा और उसे कंधे से पकड़कर साइड में धकेला कि वो बेचारा हवास बागता सा ही रह गया। और फिर अगले ही सेकंड उन्हें एल्बर्ट वहाँ नजर न आया। वो सब हंसते हुए वहाँ से चले गए। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर बिनिश छलांग लगाती बेड पर जाकर बैठ गई और घूंघट ओढ़ गई। इस वक्त उसे यही ड्रामा बेहतर लगा। वरना एल्बर्ट ज़रूर उसका गला दबाने का आज इरादा रखता था। दूसरी तरफ वो जो इतने गुस्से में अंदर आया था, उसे अच्छी और मासूम मशरक़ी दुल्हनों की तरह घूंघट ओढ़कर शोहर का इंतज़ार करते देख अश अश ही कर उठा था। अच्छा, मुझसे रंगबाजी, एल्बर्ट जानदार मुस्कुराहट लिए ज़ेरे लब बोला, और वो गुस्सा जो अभी चंद सेकंड पहले पीक पर था, बीनिश की इस हरकत पर पल में हवा हुआ, धुआं हुआ। भारी कदम उठाता कदम कदम चलता वो बेड के करीब गया और धड़ाम से बिनिश के सामने बैठ गया। उसके इस तरह बैठ जाने पर उसका दिल उछल के रह गया। जो चेहरा मैं इतनी बार देख चुका हूँ, घूंघट निकालने का क्या फ़ायदा बीवी, क्यों 90s की हीरोइन की तरह बिहेव कर रही हो, एल्बर्ट ने मसनूई संजीदगी से कहा और बिनिश पर यही जाहिर रहने दिया कि वो शदीद गुस्से में है। और अगले ही पल बिनिश ने अपना घूंघट खुद ही उठा दिया और फिर एक चांद का सा चेहरा एल्बर्ट के सामने था। अंदर ही अंदर वो मुस्काया। वो 16 सिंगार की उसके सामने दुल्हन बनी बैठी थी। मैरून रंग के लहंगे में दमकता वजूद दिल के तारों को बुरी तरह छेड़ गया था। अभी क्या बोल रही थी आज़र से? एल्बर्ट ने झटके से उसकी कलाई जकड़ी और करीब करके जबड़े भेजते पूछा। बीनिश की हिरनी जैसी आंखें पल में हल्की खौफजदा हो गई। एल्बर्ट हैरान पर हैरान हो रहा था कि ये वही बीनिश है जो हमेशा उसकी नाक में दम करती थी, या ये लड़की जो आज उसके सामने बैठी है कोई और है। वो मैं उसे कह रही थी कि आपको जल्दी अंदर आने दे। हड़बड़ी में वो उल्ट जुमला बोल गई, जिससे एल्बर्ट के लबों पर तबस्सुम बिखरा था और अपने अल्फाजों का एहसास होने पर बीनिश के चेहरे पर गुलाल। ओह, एल्बर्ट ने होंठों को गोल शेप दी। मुंह पे झूठ। एल्बर्ट ने उसकी ठोड़ी थामकर चेहरा ऊंचा किया और दांत पीस कर कहा, और क्या कहा तुमने? आप? बिनिश ने बोझल पलकें झपकाई। एल्बर्ट का चेहरा नर्म पड़ा, जिससे उसे ढारस मिली। तुम इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? घूंघट उठाकर मुंह दिखाई देने की बजाय तुम मुझसे ऐसे गुस्सा हो रहे हो। बिनिश फौरन आपसे तुम पर आते शिकवा कर गई। अरे क्या बात करती हो? मुंह दिखाई में मेरी जान की कैसे भूल सकता हूँ? ये रही ना मुंह दिखाई। एल्बर्ट ने भरपूर मुस्कुराकर कहते उसके चेहरे का रुख 2 उंगलियों की मदद से साइड मेज की तरफ मोड़ दिया, जहां हल्दी और मेहंदी के बाउल पड़े थे। मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें यूनिक किस्म की मुंह दिखाई दी जाए। आंखों में साफ शरारत झलक रही थी। मेज की तरफ देखते बिनीश ने अपना हलक तर किया। तुम अब मुझसे बदला लोगे? उसने नम लहजा लिए एल्बर्ट से पूछा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं क्यों अपनी बीनी से बदला लूंगा भला? मैं तो बस होली खेलना चाहता हूँ, हल्दी और मेहंदी से, एल्बर्ट ने खुमार आलूद आंखों से कहा, जिस पर उसके रहे से ओसान भी खता हुए। होली रंगों से खेलते हैं एल्बर्ट, बिनिश ने घूरी से नवाजा, जिस पर उसका कहका बुलंद हुआ। कल तुमने पहले मुझे हल्दी लगाकर मेरा चेहरा खराब किया था। बिनिश ने मजीद उसे शर्मिंदा करना चाहा। जो भी है, मेरा इरादा नहीं बदलने वाला, एल्बर्ट ने संजीदगी से कहा और अपनी टर्बन साइड पर रखी। और फिर अगले ही लम्हे बिनिश के आंसू उसके रुखसार पर बह गए थे और ये देखते ही एल्बर्ट की जान हवा हुई। अरे अरे अरे, हा 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 हा। और फिर एल्बर्ट का जानदार कहका कमरे में दोबारा बुलंद हुआ। अरे मेरी चुड़ैल, मैं मजाक कर रहा था। वो जो दुल्हन बनी बच्चों की तरह रोने लगी थी, एल्बर्ट ने उसे सीने से लगाए प्यार से कहा। और फिर अगले ही लम्हे वो उसे अपने हाथों से मारने लगी थी। तुम बदतमीज हो एल्बर्ट के एल्बर्ट, हा 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 हा। एल्बर्ट हंस हंस के बेहाल हो रहा था। फिर उसे बामुश्किल कंट्रोल करते एल्बर्ट ने उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरते कहा, परी लग रही हो, और एक मोहब्बत भरी मोहर उसके माथे पर सुप्त की। बिनिश ने आंखें बंद करके उसके लफ्ज़ को महसूस किया। चंद लम्हों बाद एल्बर्ट ने साइड ड्रॉर खोला और उसमें से एक छोटी सी फाइल निकाली और फिर मुस्कुराते हुए उसे बिनिश के आगे अपने दोनों हाथों पर रखते मुअद्दब अंदाज में पेश किया। बिनिश ने सवालिया नज़रों से उसकी जानिब देखा। मुंह दिखाई, एल्बर्ट शरीर लहजे में ज़ेरे-लब बोला। बिनिश ने मुस्कुराकर वो फाइल पकड़ी और जब खोल कर देखा तो अपनी आंखों पर यकीन न कर सकी। उसने नम आंखें उठाकर एल्बर्ट की तरफ देखा
और जवाबन एल्बर्ट ने आंखें झपक कर उसे यकीन दिलाया कि बिलाशुबा ये सच है। ये एक छोटे से अस्पताल की फाइल थी जो एल्बर्ट ने खुद बिनिश के लिए तामीर करवाया था और उसके नाम कर दिया था। बिनिश की आंखें मुकम्मल भीग गई थीं और वो झटके से एल्बर्ट के गले लग गई। थैंक यू सो मच एल्बर्ट, थैंक यू सो मच, भीगे लहजे में कहती वो उसके कंधे का बोसा ले गई थी। एल्बर्ट ने मोहब्बत से उसका सर सहलाया और फिर उससे अलग हुआ। अस्पताल थोड़ा छोटा है मगर मेरी मेहनत की कमाई से बनाया है मैंने, एल्बर्ट ने नीम मुस्कुराकर कहा। बिनिश ने नफ़ी में सर हिलाया और उसके हाथ थाम गई। एल्बर्ट ने उसके दोनों हाथों का बोसा लिया, फिर उन दोनों ने नवाफिल अदा किए और एक दूसरे की ज़िंदगी में शामिल होने के लिए अपने रब्बे करीम का शुक्र अदा किया। रफ्ता रफ्ता वक्त सरकता गया और बिनिश एल्बर्ट की मोहब्बत में रंगती चली गई। काफ़ी रात हो चुकी थी, तकरीबन 11 बज चुके थे। तमाम काम ख़त्म करवा के जिब्रील अब फ्री हुआ था। हल्की हल्की सी थकावट महसूस करते उसने कदम जीनों की तरफ बढ़ाए। यकीनन सलसबील सो चुकी होंगी, ऐसा सोचते वो कॉरिडोर अबूर करता कमरे की तरफ आया। दरवाजे पर पहुंचते नॉब घुमाकर वो कमरे में दाखिल हुआ और जैसे ही उसके कदम कमरे में पड़े उसे लगा वो किसी और ही दुनिया में आ गया है। पूरे कमरे में हर तरफ छोटे छोटे मिट्टी के दिए जल रहे थे, जिनकी हल्की हल्की जलती बुझती रोशनियां कमरे में ख्वाबनाक सा माहौल पेश कर रही थी। फर्श पर बिखरे सुर्ख गुलाब की पत्तियों की उठती भीनी खुशबू नथनों से टकराई तो घनी मूंछों तले लब मुस्कुराहट में ढले और जिब्रील दाऊद की आधी थकावट ये खुशबू ही चुरा के ले गई थी। दरवाज़ा बंद करते वो मुकम्मल अंदर आया और सलसबील को ढूंढने की गर्ज से इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। कमरे के नीम मलगजे अंधेरे में खो ख्वाब नगर की शहजादी टेरेस के ग्लास डोर में रुख उस तरफ करके बैठी ग्लास डोर की दहलीज पर बाकी बचे चंद दिए मोमबत्ती से जलाने में मसरूफ़ थी। जिब्रील की मुस्कुराहट और भी गहरी हुई। सुर्ख अरूसी लहंगा जेबतन किए, नीम घुंघरियाले शहद रंग बाल कमर पर बिखरे बाहर से आती हल्की हवा के जेर असर लहरा रहे थे। लहंगे के साथ का दुपट्टा उसने एक शाने पर ले रखा था। हाथ में पकड़ी मोमबत्ती की रोशनी से जिब्रील उसका आधा चेहरा देख पा रहा था, जिससे उस पर यह इंकशाफ हुआ कि उसने नाक में नथ पहनी थी, सोने की चूड़ी नुमा बड़ी नथ जिसमें चंद सुर्ख मोती परोए गए थे, और मोमबत्ती वाले हाथ में उसने भारी पंजांगला पहन रखा था। जिब्रील ने छंबे से उसे देखा और फौरन अपना कहा जुमला याद आ गया। ना आपने झूमर लगाया, ना बिंदिया, ना नथ, ना ही सुर्ख जोड़ा पहना। एक लम्हे के लिए उसे अपनी बसारत पर एतबार न आया कि ये उसकी सलसबील ही है। ट्रांस किसी कैफे से उसकी जानिब भारी कदम उठाता वो आगे बढ़ा। अपने पीछे भारी कदमों की चाप सुनते वो ज़ेरल्ला मुस्कुराई। दिल मामूल से तेज़ धड़कने लगा था। वह मुश्किल अपनी धड़कनों को संभालती वो रुख मोड़ गई और उस शहजादी को देखकर जिब्रील दाऊद के रहे सहे ओसान भी खता हुए। स्याह काजल से भरी आंखें, मस्कारे के बोझ से बोझल हुई शहद रंग पलकें, गदार सुर्ख होंठ, कुशादा पेशानी के विस्त में लगाई सोने की बिंदिया और बाएं तरफ कनपट्टी पर लगाया गया झूमर, गले में पहना नौलखा रानी हार, नाजुक पहलू में बांधा गया कमरबंद, चूड़ियाँ, मेहंदी और न जाने क्या क्या जिनके शायद वो नाम भी नहीं जानता था। जिब्रील की आंखें मखमूर हुईं। उसने हाथ सलसबील के आगे बढ़ाया। अपना दूसरा खाली हाथ वो मुस्कुराकर जिब्रील की चौड़ी हथेली में देती उठ खड़ी हुई। दूसरे हाथ में मोमबत्ती उसने हनोज पकड़ रखी थी, जिसमें जिब्रील अब उसका चेहरा वाज़े देख पा रहा था। उसके एक एक नक्श किसी भी धुंधलाहट से पाक था। वो बिना पलक झपकाए यकटुक पत्थर बना उसे देख रहा था, जैसे अपनी बसारत पर यकीन करने की कोशिश कर रहा हो। उसके सकते में डूबे वजूद को देखकर सलसबील गहराई से मुस्कुराई और उस शहजादी की मुस्कुराहट पर जिब्रील दाऊद का सकता टूटा था। वो फैसला न कर पाया उसके सामने खड़ी लड़की आसमान से उतरी कोई हूर है, उसी स्याह आसमान पर चमकता कोई चौदहवीं का चांद, कोई अप्सरा, कोई परी पैकर, किसी ख्वाब नगर की शहजादी या उसकी सलसबील। मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझाती सलसबील साइड मेज पर रख गई, फिर जिब्रील के दोनों हाथ थाम गई। अब मंजर इतना रोशन तो ना था मगर ख्वाबनाक सा था। मुझे माफ़ कर दे, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आंखों में हल्की नमी लिए वो शाम में किए अपने रवैये पर नादम दिखाई दे रही थी। जिब्रील ने भौवें सुकेड़कर उसे देखा। आप माफ़ी ना मांगा करें मुझसे। सलसबील की मेहंदी भरी हथेली अंगूठे से सहलाते जिब्रील ने नरमी से कहा। नज़रें उसके हाथों पर थी, फिर उन छोटे छोटे हाथों को नाक के करीब ले जाकर वो उनकी खुशबू को अपने अंदर उतारने लगा। फिर चेहरा सीधा करते वो वापस सलसबील के चेहरे को देखने लगा। आप नाराज़ हैं मुझसे? सलसबील ने उदासी से पूछा। मैं आपसे नाराज़ हो सकता हूँ क्या? जिब्रील ने भी सवाल के बदले में सवाल किया। आप नाराज़ थे शाम से, आपने मुझसे बात नहीं की,
पास भी नहीं आए, दूर दूर ही मसरूफ़ रहे। उसकी शर्ट को मुट्ठी में दबोचती वो शिकवा कनासी गोया हुई। ऐसी बात नहीं है सबील, बस इधर उधर कामों में ज़रा मसरूफ़ था, मगर उसके बावजूद मेरी तमाम तर तवज्जो, हिस्से सब हमेशा आपकी तरफ ही होता है, हमेशा। उसका चेहरा हाथों में भरते जिब्रील ने नरमी से कहा। हाँ, सलसबील हुनकार बढ़ते सर झटक गई जैसे उसकी बात पर कायल न हुई हो। जिब्रील मुस्कुराया। फिर जिब्रील ने सलसबील का बैंडेड वाले हाथ को पकड़ा और नरमी से उसके पोर सहलाए। अपना ख्याल रखा करें, कितनी चोट लगा ली है आपने। उसके लहजे में दर्द का अंसर था। रखती हूँ ख्याल, जवाबन वो नरमी से बोली। वो इस कदर हसीन लग रही थी कि वो अपनी नज़रें उस पर से हटा नहीं पा रहा था। फिर जिब्रील ने सलसबील की आंख से काजल अपनी छोटी उंगली की मदद से चुराकर सलसबील के कान के पीछे लगा दिया। कैसी लग रही हूँ मैं? मुस्कुराकर सलसबील ने पूछा। आप बिल्कुल सलसबील जिब्रील दाऊद लग रही हैं। जिब्रील ने उसे बाहों के हिसार में लेकर मोहब्बत से जवाब दिया। हाँ हाँ हाँ, वो सर झटक कर हंस दी। आपको तो तारीफ़ करनी भी नहीं आती जिब्रील। उसके कंधे पर चित लगाती वो हंसते हुए गोया हुई। जवाबन जिब्रील भी मुस्कुराया। आती है ना, खूब तारीफ़ करनी आती है, बस अंदाज थोड़ा अलग होगा। और जवाबन आप मज़ीद शर्माने लगेंगी। एक लम्स सलसबील की नत पर छोड़ते जिब्रील ने मखमूर लहजे में जवाब दिया। सलसबील मज़ीद सर झुकाती हंसने लगी। अब वो उसके झूमर को सीधा कर रहा था जो हल्का टेढ़ा हो गया था। ये कब से सही नहीं हो रहा, मैंने इतनी मुश्किल से लगाया है। सलसबील ने मासूमियत से उसे शिकायत की। जिब्रील दोबारा झुकते वहाँ भी एक लम्स छोड़ गया। सलसबील झेप सी गई थी। फिर वो मुस्कुराकर उसे हिसार में लेते ऊपर उठा गया और अंदर ले गया। ये मंजर था वलीद लुगारी के पेंटिंग रूम का, जहाँ हमेशा की तरह स्टूल पर बैठा बिलाशुबा वो सलसबील मुस्तफ़ा की तस्वीर बना रहा था। वो असल ज़िंदगी में तो कभी उसकी दुल्हन नहीं बन सकती थी, मगर इन तस्वीरों में तो वो उसे अपनी दुल्हन बना सकता था ना। लबरेज आंखों से वो उसे सफ़ेद सफ़े पर तराश रहा था। सुर्ख रूसी लहंगा पहने, 16 सिंगार किए। ये सिंगार वलीद लुगारी ने खुद उसे अपने नाम का अपने हाथों से करवाया था। उसकी आंखों से बार बार आंसू बह रहे थे, जिन्हें बार बार वो हाथ की पुष्ट से रगड़ता इस तस्वीर के अधूरेपन को पूरा कर रहा था। इसमें सलसबील एक सोफे पर बैठी थी दुल्हन बने, और उसके चेहरे पर एक हसीन मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। उसके सामने नीचे पैरों में बैठे वो खुद को तराशने का इरादा भी रखता था। एक फैला हुआ हाथ उसने अभी तराशा था, जिसमें हसीन मुस्कुराहट सलसबील का जिसमें हसीन मुस्कुराहट लिए सलसबील का हाथ धरा था। बिलाशुबा ये हाथ वलीद लुगारी का था। अभी अपना वजूद उसने बनाना था। पूरी रात सलसबील पर हर्ज करने के बाद जब अपने वजूद को बनाने की बारी आई तो वो खुद को थका सा महसूस करने लगा, और अचानक एक दर्द की लहर उसके सर से उठी, और वो हाथ अपना जो वो तराश रहा था उसमें रंग भरना भी बाकी थे। उसने अभी बस खाका तैयार किया था। दर्द की शिद्दत अचानक इस कदर बढ़ गई थी कि उसे ये तक ना पता चला कि कब उसके हाथ से ब्रश और रंग की शीशी छूटकर ज़मीन पर गिर गई। वलीद तेज़ी से कुर्सी से उठा, मगर अपने पैरों में वज़न तक न डाल सका। वजह शदीद दर्द, आंखों से बह रहे आंसू और मंजर की धुंधलाहट थी। वलीद अपने सर को थामता घुटनों के बल नीचे बैठ गया, और फिर एक तेज़ धार सुर्ख खून की लकीर उसके नाक से निकलकर सफ़ेद फर्श को सुर्ख करने लगी थी। खून के कतरे टप टप ज़मीन पर गिरने लगे थे। धुंधली आंखों से उसने नीचे खून को देखा और फिर होशो हवास से बेगाना हो गया। वो कमबख्त क्या जानता था जो तस्वीर उसने अभी तराशी है वो उसकी नक्श की गई आखिरी तस्वीर है, आखिरी और अधूरी तस्वीर, जिसमें सलसबील के हाथ को वो मुकम्मल पकड़ भी न सका, और खाली खाका सा उस पर नक्श रहा जो आखिर तक खाली ही रहना था। और ये तस्वीर ज़िंदगी भर अधूरी ही रहनी थी, जिस तरह उसकी ज़िंदगी अधूरी रह गई थी, जिस तरह उसका एक तरफा इश्क अधूरा रह गया था, क्योंकि ज़िंदगी उसके पास कम बची थी। जिब्रील बेड ग्राउंड से टेक लगाकर बैठा था, जबकि सलसबील उसकी गोद में सर रखे उससे बातें कर रही थी। हाथ में पकड़े गुलाब से पत्तियां तोड़ तोड़ कर जिब्रील उसके बिखरे बालों पर रखकर उन्हें फूलों से सजा रहा था। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। वो फौरन उठी और सीधी होकर जिब्रील के सीने पर ठोड़ी रख गई। जिब्रील ने उसके गिर्द हिसार कायम किया। सलसबील के उठने से तमाम पत्तियां उसके बालों से झड़ के जिब्रील की आगोश में जा गिरी थी, और चंद एक उसके बालों पर बाकी रह गई थी। सलसबील के चेहरे
रोशन पेशानी और शहद रंग आंखों को देखकर जिब्रील की आंखें भीग गईं और वो लम्हे उसे याद आने लगे। वो ख्वाब, वो सफ़ेद चादर, वो लोग, और फिर उसके रब का उस ख्वाब को तबीर बनाकर उसकी ज़िंदगी में शामिल कर देना। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो सलसबील को पालेगा। सलसबील उम्र भर के लिए उसकी हो जाएगी। उसके लिए जिब्रील के दिल में मोहब्बत दिन ब दिन खतरनाक हद तक बढ़ती चली जा रही थी। जिब्रील के इस तरह देखने पर वो खुद भी भूल गई कि वो क्या बात करने लगी थी। सलसबील को उसके इतना करीब थी कि वो उसे इतने करीब से देख रहा था। अल्लाह अल्लाह की इस रहमत पर वो दिल में ढेरों शुक्र अदा कर रहा था, और वो जितना भी अपने रब करीम का शुक्र अदा करता उतना ही कम था। ऐसे क्या देख रहे हैं? सलसबील ने उसे यकटू खुद को देखता पाकर मुस्कुरा के पूछा। देख रहा हूँ, क्या दुआएं ऐसे भी कबूल होती हैं? आपको इतने करीब से देख सकूंगा कभी नहीं सोचा था। सलसबील मज़ीद खुलकर मुस्कुराई और उसके सीने पर रुखसार टिका गई। वो हमेशा ऐसे ही कहता था। ये जुमला वो कई बार बोल चुका था। जिब्रील के पोर मुसलसल उसके बालों में हरकत कर रहे थे। फिर सलसबील ने दोबारा सर उठाया और दोबारा उसे देखा, और वो तो पहले ही उसे देख रहा था। अब तो खुश है ना आप? इशारा साफ था कि जी, पहन लिया सुर्ख जोड़ा, सज लिया दुल्हन की तरह। अब आप खुश हैं? उसके सवाल पर जिब्रील भरपूर मुस्कुराया और झुकते उसकी पेशानी का बोसा लेते बोला, मैं हमेशा ही आप पर खुश होता हूँ सबील, और अपनी आखिरी सांस तक, और उसके बाद भी मैं हमेशा आप पर खुश ही रहूँगा। ऐसा लम्हा कभी नहीं आ सकता जिसमें जिब्रील दाऊद अपनी सलसबील से नाखुश हो। वो मसलसल ना ख़त्म होने वाली मुस्कुराहट लिए उसे सुनती रही। मैंने आपके लिए इतनी मेहनत की, उसने लाड से बताया। अब जिब्रील उसका हाथ थाम कर चूमते बोला, मैं मशकूर हूँ आपका और हमेशा रहूँगा। उसके शुक्रिया अदा करने के अंदाज भी निराले थे, जिस पर वो लाल गुलाब हो जाती थी। सलसबील मज़ीद थोड़ा ऊपर को खिसकी और उसके कंधे पर सर रख के आंखें मूंद गई। जिब्रील भी मुकम्मल उसे खुद में छुपा गया। अब मुझे छोड़ेंगे तो नहीं ना? कुछ देर बाद आंखें मूंदे सलसबील ने भीगे लहजे में पूछा। जिब्रील ने अपनी बंद आंखों को खोला और हैरत से सलसबील की तरफ देखा। वो उससे ऐसे सवाल की तवक्को हरगिज़ नहीं कर रहा था। सबील, जिब्रील ने संजीदगी से उसे पुकारा, मगर वो सीधी न हुई, बल्कि मज़ीद चेहरा उसके कंधे में छुपा गई, जैसे अब उसकी स्याह संजीदा आंखों से बचना चाह रही थी। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? जिब्रील ने तासुब से उसके झुके सर को देखकर पूछा। अब आंसू सलसबील की आंखों से निकलकर जिब्रील के कंधे पर गिरे तो जिब्रील ने फ़ौरन उसका चेहरा थामकर सामने किया। सबील, उसके आंसू साफ करते जिब्रील ने तकलीफ से उसे पुकारा। फरद भी ऐसे ही कहता था कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मगर फिर भी छोड़ दिया उसने, हिचकियां भरते सलसबील ने कहा। जिब्रील को इस नाम पर बहुत तकलीफ हुई थी। ये एक वाहिद नाम था जिसे सलसबील के मुंह से सुनकर जिब्रील को अपना आप दहकते अंगारों पर महसूस होने लगता था। सब्र करते और जब्त करते जिब्रील ने प्यार से उसका सर सहलाया। मंगेतर के वादों और शोहर के वादों में फ़र्क होता है सबील। चेहरे पर बिखर रहे बालों को उसके कानों के पीछे अड़ेसते जिब्रील ने नरमी से जवाब दिया, जबकि उसकी स्याह आंखें हल्की सुर्ख हो रही थी। फिर वो उसे वापस अपने साथ लगा गया और किसी छोटी सी बच्ची की तरह थपकने लगा, जैसे उसे सुलाने की कोशिश कर रहा था। ये पल कभी ना ख़त्म हो, ये खुशियाँ कभी ना ख़त्म हो, उनका ये प्यार कभी ना ख़त्म हो, ऐसी दुआ उन दोनों के दिल में थी। वो दोनों एक दूसरे की कुल कायनात बन गए थे। अब एक दूसरे के बगैर जीना नामुमकिन सा अमर हो गया था। जिब्रील का गम अब सलसबील बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, और जिब्रील तो पहले ही उसे देखकर जीता था। सलसबील को लगता था अगर अब जिब्रील उससे दूर हो गया तो आखिरी रास्ता मौत ही की सूरत में बचेगा, और इसके अलावा उसके हिस्से में और कुछ बाकी नहीं रहेगा। जारी है। किस्त को सुनने और पढ़ने के बाद राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिखरी मेरी ज़ात जल्द मुकम्मल हो जाएगा और आतिश आलम की किस्त हर हफ्ते और इतवार को अपलोड की जाएगी। जल्द इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नई किस्त के साथ। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।